available. We can have pump storage of green of river pump storage, as well as we can have battery storage, which are expensive at the moment, and and so on. But I think what many state electricity boards and others, many discoms are or state power sector is forced to do today is to operate coal power plant at a low PLF. And that has certain lot of costs which are not fully accounted for all of it. Because it's not just that your specific heat energy consumption goes up, but it is also the fact that the life of the equipment significantly comes down. So I think we have to really thinking about ways in which we can operate the system without really bringing down the uncertainty and if on coal-based power plant, because most of them can operate at a good plant load factor. And I think we have to see that at the same time we are facing a very different climate, heat wave, and that's really boosted up the power demand in UP, for example, significantly, almost 10% over 1 year. And that kind of issue we are going to face more and more as the temperature and global warming increases. We are also having a different kind of an impact on the load factor that when EV charging, electric vehicles spread, and EV charging patterns differ from person to person. And that is also going to create another kind of impact on your load factor. So I think we have to take care of these major challenges that power sectors and discoms, states and discoms face. I think central regulation projects these things and synthesize these things. And it really does give you an indicator of how to go about it. And yet, it needs to take care of the problems that states face, because states have their own concerns, they have their own limitations and requirements, and their own political agendas differ from state to state and their governments. And state electricity boards and others function within these constraints, and the central regulations would have to take care of these things. I think we need an understanding of this, a capacity building we call it, but at the same time, I think capacity building is required not just for state government, state officers, but also hopefully for central policymakers as well, so that we get a much more practicable, and a feasible and generally acceptable by all people regulations and a way forward. But we have to solve this problem. We have to go ahead, and I hope we are able to do that successfully. Thank you all. Thank you, sir. Hello. On है but नहीं work नहीं कर रही. Hello.
I was going to the two-day workshop program, and I find that these are all topics which are very relevant for today. और आपने जो एक्सपर्ट्स का पैनल भी उसमें डिजाइन किया है और जिनको आमंत्रित किया, आई होप दे विल बी कमिंग because they are the people who have been behind the formulation of these rules, regulations and guidelines. तो उनके द्वारा उनसे सीधे अगर आप संवाद स्थापित करेंगे तो यू विल हैव ए बेटर अप्रिसिएशन ऑफ दीज रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। बिकॉज कई बार क्या हो रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन और क्योंकि ट्रांजिशन इतनी तेजी से हो रहा है, चैलेंजेस इतनी तेजी से आ रहे हैं और उनको उतनी तेजी से ही एड्रेस किया जा रहा है, तो रूल्स रेगुलेशंस की बहुत ही तेजी से चर्न आउट हो रहे हैं। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फील्ड फंक्शनरीज टू एब्जॉर्ब देम। मेनी ए टाइम्स तो ड्राफ्ट उसका रहता है, जो लैंग्वेज रहती है वो इतनी क्लियर नहीं होती। सो अगर आपको जिन लोगों ने उसको ड्राफ्ट किया है, जिन लोगों ने उसके पीछे थिंकिंग दी है, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, देन यू गेट ए बेटर एप्रिसिएशन। बिकॉज सेकेंड हैंड नॉलेज से बेहतर है कि फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको मिले। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इरादे एंड घनश्याम जी फॉर गिविंग ए गुड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल द रेलिवेंट टॉपिक्स, चाहे वो रिसोर्स एडिक्वेसी हो, चाहे वो GNA हो, ग्रिड कोड हो। Now, flexibilization of thermal power plants also has become a very important issue for the stabilized power and grid balancing. और उसमें अपने कई challenges हैं, तो ये सारे topics बहुत ही आज की तारीख में relevant हैं और इसलिए आज की workshop एक महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा इसमें मुझे ये लगा कि टाइम थोड़ा कम मिला लोगों को और इन्विटीज को बुलाने में, और बड़ी शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये वर्कशॉप प्लान हुई, तो इसलिए शायद उतना अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पे सभी स्टेट्स का हो पाया नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट इट वुड हैव बीन बेटर कि नेक्स्ट वर्कशॉप्स हो वो पहले से एडवांस में प्लानिंग हो करके, और सभी को अगर इन्फॉर्मेशन चली जाए, देन पीपल विल बी एबल टू कम फॉरवर्ड एंड गेट द रियल बेनिफिट ऑफ दीज वर्कशॉप्स। तो जो पहले एनर्जी सिनेरियो था और जो वर्तमान में एनर्जी सिनेरियो है, दोनों में वास्ट डिफरेंस है। पहले जो गवर्नमेंट का फोकस था वो 3 चीजों के ऊपर था, मेनली सेंटर्ड ऑन पावर फॉर ऑल और यूनिवर्सल एक्सेस के ऊपर। पहला था एक्सेसिबिलिटी, दूसरा अवेलेबिलिटी और तीसरा अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट्स आई, रेजिम्स आए, उन्होंने एक्सेसिबिलिटी पे काफी फंडिंग करी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग रही हो या GOUP की फंडिंग रही हो। आज हम इस पोजीशन पे हैं कि नाउ एवरी विलेज हैव एक्सेस टू पावर। तो वो जो पहला चैलेंज था वो हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी को लेकर के वो लगभग कंप्लीट हो गया है, एंड वी हैव नाउ यूनिवर्सल एक्सेस टू पावर। जो सेकेंड था, जो पावर की शॉर्टेजेस हुआ करती थी पहले, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, उस पर भी काफी काम हुआ। जिसमें से एक जो मेन काम था वो था रीजनल ग्रिड, जो थे पहले उनका इंटीग्रेशन करना, एंड नाउ वी हैव नेशनल ग्रिड। तो अब हमें पावर को किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरे स्टेट में भेजना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क बिकॉज द ग्रिड इज कनेक्टेड। तो अब वो चैलेंजेस हमारे खत्म हो गए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर जो है दैट हैज बिकम फीजिबल नाउ। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए जितने स्टेप्स लिए गए, और इधर रिसेंटली जो उसको वायबल बनाने के लिए बिजनेस को, प्राइवेट सेक्टर के जनरेशन बिजनेस को, और ट्रांसमिशन में भी उसकी जो पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन बढ़ी, उसकी वायबिलिटी इंश्योर करने के लिए भी तमाम स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लिए, CERC ने भी लिए, CA ने भी उसमें काम किया। तो नाउ दोस बिजनेसेस हैव बिकम वायबल और इन्वेस्टमेंट्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू द जनरेशन सेक्टर आल्सो। एंड एज ए रिजल्ट अब जो जनरेशन सेक्टर से जो प्राइवेट सेक्टर से पावर जनरेट हो रही है, उसका भी अ परसेंटेज इज ऑलमोस्ट टचिंग द पावर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। तो दोनों में ही, थर्मल में भी आ रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में तो खासतौर से इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, एंड दे हैव स्टार्टेड फ्लोइंग इन। तो द सेकंड चैलेंज हमारे पास में था अवेलेबिलिटी का, दैट आल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज बीन एड्रेस्ड। हालांकि अब जो हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है, जो COP26 के टारगेट्स आए हैं पंचामृत के, उसमें अब हमने ये कहा है कि हम रिन्यूएबल पावर को बढ़ा करके उसको 500 गीगावाट तक की जो पावर है वो 2030 तक के हमने टारगेट्स रखे हुए हैं कि 500 गीगावाट ऑफ पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल की हो जाएगी। और इसमें जो टोटल हमारा एनर्जी कंजम्पशन है उसमें 50% एनर्जी कंजम्पशन जो है हम नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। तो दिस इज अ ह्यूज टारगेट व्हिच वी हैव सेट फॉर आवरसेल्फ। बट वन गुड थिंग इज कि लगभग 400
आई थिंक 44 या 45 गीगावाट की कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। टोटल मिलाकर के जो हमारे पास में इंस्टॉल कैपेसिटी है आज की तारीख में, फॉसिल एंड नॉन फॉसिल, एंड उसमें लगभग 195 गीगावाट जो है वो हम नॉन फॉसिल कैपेसिटी हमारी इंस्टॉल हो गई है। तो दिस इज अ ह्यूज ग्रोथ इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी काफी काम गवर्नमेंट ने किया है, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड आरी रिसोर्सेज को प्रमोट करने का काम है वो काफी तेजी से हुआ है। इधर पीएम सूर्यघर स्कीम भी लॉन्च हुई है, और उसमें भी बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, एवरीबडी इज गेयरिंग टू मीटिंग देम। इसी तरह से पीएम कुसुम योजना जो है उसमें फार्मर्स को कैसे चीपर पावर दी जाए, कैसे दे ऑल्सो बिकम सेलर्स ऑफ पावर, वो अपनी कंजम्पशन तो करें ही और वो बेच भी सकें और उससे भी इनकम जनरेट कर सकें, जिससे जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का टारगेट है गवर्नमेंट का वो भी मीट आउट हो सके। तो ये चीजें, गवर्नमेंट की सब्सिडीज तो आती ही हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है पावर। अभी यूपी ने फ्री पावर के लिए वो भी गवर्नमेंट ऑर्डर किया है पीटीडब्ल्यूज के लिए। तो पावर को अफोर्डेबल चीपर बनाने के लिए वेरियस स्टेप्स आर बीइंग कंसिडर्ड। रिन्यूएबल पावर चीप है, लेकिन चैलेंज वही है कि वो इंटरमिटेंट पावर है, इनकंसिस्टेंट पावर है, सो दैट कम्स एज ए ह्यूज चैलेंज। एंड उसके लिए उसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब आज की तारीख में हमारे पास में है। जो पंचामृत के टारगेट्स हैं, दे आर नाउ दी ड्राइविंग फोर्स फॉर अस, और उसमें जो 2030 के लिए 4 टारगेट्स हैं, पाँच हजार आप ही ले लो। टारगेट है कि हम लगाया ना मैंने, जो तो कनेक्ट नहीं किया। हमारी इंटेंसिटी है उसको 45% के वो अंदर सावल जो हमारे एमिशंस हैं उनको हम 1 बिलियन टन से रिड्यूस कर लें बाय 2030। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जिसके लिए हमें गियर अप करना है। और क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और विंड पावर को हमारे को बढ़ाना है, तो इसलिए, और ये इंटरमिटेंट पावर है, इसलिए ये जो सारी चीजें हैं दे हैव बिकम इम्पोर्टेंट। जितने भी टॉपिक्स ये 2 दिन की वर्कशॉप में रखे हुए हैं, अब उसमें चूंकि दिन में आपको आरी पावर मिल रही है, तो थर्मल पावर के साथ में, क्योंकि वो उसकी रैंप रेट को इमीडिएटली आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके साथ में टेक्निकल चैलेंजेस तमाम हैं। एंड आई एम हैप्पी कि इसका एक अलग से सेशन इसमें है कि थर्मल पावर प्लांट्स को कैसे हम मैनेज करें इस चेंज सिनेरियो में, जिससे कि ये जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, जो उसकी लाइफ, कैसे प्लांट लाइफ को जो है हम बढ़ाएं विद इंक्रीजिंग रैंप रेट्स एक्सेट्रा। तो उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हम उसको एस्टेब्लिश कर सके, सिस्टम को हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म जनरेशन टू ग्रिड कंट्रोल टू बैलेंसिंग एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही अब कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें हो गए हैं। दिस इज नो लॉन्गर इन लेमैन, आई मीन जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पहले हुआ करती थी कि एक बार चला दिया और फिर उसके बाद में पावर प्लांट चल रहा है, अब आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर उसकी पावर को रिड्यूस करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो प्लांट की कैपेबिलिटी भी उस हिसाब से कंट्रोल हो सके। दिस इज व्हाट वी हैव टू एंश्योर। और उसके लिए ये जितने भी टेक्निकल फॉर्मुलेशन हो रहे हैं, वो चाहे सीआरसी रेगुलेशंस बना रहे हो या सीए की गाइडलाइंस आ रही हों, इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। उसके लिए फिर जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, अब अगर आपने बायोमास को फायरिंग के लिए रेगुलेशंस बनाए हैं, तो उसके लिए आपको क्या चेंजेस करने हैं, बॉयलर में क्या करने हैं, बाकी मशीनरी में क्या करने हैं, वो सारे भी अच्छे से समझने पड़ेंगे, पावर प्लांट की कैपेबिलिटी क्या है। तो सच काइंड ऑफ वर्कशॉप बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है वो भी थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पे 3-4 चैलेंजेस हमारे सामने हैं। पहली बात तो ये है कि जो डिमांड कर्व है वो हमारा बहुत ही उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है बिटवीन डे टाइम, जो हमारे पास में पावर की एवरेज डिमांड आती है, और जो पीक पावर की डिमांड। अगर हम 2 स्लॉट्स देखें बिटवीन अक्टूबर टू मार्च एंड अप्रैल टू सितंबर, तो अप्रैल टू सितंबर में जो हमारी लास्ट 2022 से अभी जो सीए ने आरए स्टडी करी उत्तर प्रदेश की, उसमें भी ये चीज मेंशन हुई कि जो हमारी वेरिएशन है अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में, इट गोज एनीवेयर फ्रॉम 15,000 गीगावाट से 15,000 मेगावाट से लेकर के वो 24,000 मेगावाट तक वेरिएशन होता है उसका। तो इट इज पीक का, जो अगर हम पीक डिमांड देखें तो उसका 62.5% जो है वो डे टाइम जो आवरली डिमांड है वो इतना कम हो जाता है।
इसी तरह से अगर हम उसके बाद वाला पीरियड देखें, अक्टूबर से मार्च वाला, तो उसमें भी जो वेरिएशन है वो 10,000 मेगावाट से 19,000 मेगावाट के बीच में है। तो यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है इसमें दोनों पीक्स में। सो दैट इज द रियल चैलेंज फॉर अस। डे टाइम में जब आरी पावर और ये अवेलेबल है, उस समय हमारी डिमांड कम है। जो रात में हमारी रिक्वायरमेंट है, उस समय ये आरी पावर अवेलेबल नहीं है। सो हाउ टू balance it, that becomes a real issue for us, because as we go on contracting more RE power, we have a challenge कि उसका हम डेटा इनमें कैसे करें। तो we have to promote storage devices, और हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा बाकी स्टेट से जिनकी उस समय डिमांड है। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे पास में एक इस मायने में थ्रो अप होते हैं। दूसरा जो यूपी का चैलेंज है वो ये है कि हमारी जो C&I कंजम्पशन है, जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, वो बहुत ही कम है। अगर हम टोटल एनर्जी कंजम्पशन देखें यूपी का, तो उसका 22% मात्र ही C&I कंजम्पशन है, जिसमें 15% के करीब इंडस्ट्रियल है, 7% के करीब कमर्शियल है। डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 47% के करीब। तो जो सेकंड चैलेंज उत्तर प्रदेश के साथ में है वो ये है कि हम C&I कंजम्पशन को कैसे बढ़ाएं। बिकॉज अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन भी देखें उत्तर प्रदेश की, तो लगभग 630 यूनिट के करीब है पर कैपिटा। और अगर कंट्री की देखें तो लगभग 1208 या 1210 के करीब है पर कैपिटा कंजम्पशन। तो इसी 50% पे ही अभी हम हैं इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन। तो इस पर कैपिटा कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट सेट किया है वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। उत्तर प्रदेश में जो टारगेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो उसी को टर्मिनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट वो ये है कि हम $1 ट्रिलियन तक लेकर के जाएंगे। अब अगर हम जीडीपी और पावर कंजम्पशन का देखें कि अगर 1% जीडीपी आपको ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो आपको लगभग मोटा मोटी 1.5% के करीब एनर्जी कंजम्पशन को अपनी बढ़ाना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू, आज की तारीख में हम $250 बिलियन की इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश में। तो अगर इसको 4 गुना करना है, तो दैट इज दी लेवल ऑफ इंक्रीज इन दी एनर्जी कंजम्पशन विच वी हैव टू प्लान आउट। तो ये नॉट इजी था कि हम अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है और उसके लिए जो एनर्जी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट्स है उसको कैसे हम लोग स्ट्रीमलाइन करें। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए सरकार ने काफी कदम भी उठाएंगे। आई विल कम टू देम ऑल्सो। तीसरा जो हमारी प्रॉब्लम, चौथी जो प्रॉब्लम है वो है आरपीओ टारगेट्स बेसिकली। अब उत्तर प्रदेश में जो अभी तक कमीशन ने स्टिपुलेट किए थे टारगेट, वो 2023-24 तक टारगेट्स हमने रखे थे लगभग 15% के करीब आपकी टोटल एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए आरई के माध्यम से। जो 24-25 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट्स रखे हुए हैं वो लगभग 30% के करीब है। तो दुगना टारगेट आपको जो है वो आरपीओ का नेक्स्ट ये 24-25 जो ऑनगोइंग ईयर है उसमें आपको आरई का अचीव करना है। and this goes up to around 43% by 29-30. So this is the trajectory which we have to follow. अब जो आपकी ऑलरेडी कमिटेड पावर है, जो थर्मल पावर प्लांट से आपने कमिट कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म आपने पीपीएस कर रखे हैं उनके साथ में, यू कांट गो बैक ऑन देम। तो ये जो एडिशनल इंक्रीज आएगा रिन्यूएबल कंजम्पशन का, ये आपकी एडिशनल कंजम्पशन से ही आएगा। तो देयरफॉर देयर इज अ चैलेंज बिफोर अस आल्सो, बिफोर यूटिलिटीज आल्सो, कि ये ट्रेजेक्टरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टिपुलेट किया है, इसको हाउ टू मीट इट आउट एंड हाउ टू गियर अप फोर टेक्नोलॉजिकली कि उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें उतनी रिन्यूएबल पावर को। और अगर हम पावर डे टाइम में सोर्स करते हैं, तो अगर डिमांड नहीं है तो उसको कहाँ पे हम पार्क करेंगे, कहाँ पे लेकर के जाएंगे, कहाँ स्टोर करेंगे। तो वी हैव टू प्लान दैट आउट ऑल्सो। तो इट इज ए बिग चैलेंज फॉर अस। कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पीछे काफी पॉलिसीज जो है, लगभग 25 से ज्यादा पॉलिसीज ले डाउन करी। और पीछे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई थी जिसमें लगभग 33.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए। एंड आई एम हैप्पी टू से, मस्ट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज, कि उसमें से लगभग 22% के करीब इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में है। एंड दी गुड पार्ट इज कि उसमें लगभग 8 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में लगभग 13,000 मेगावाट कैपेसिटी के साइन हुए, एमओयू साइन हुए। उसमें ऑल गुड नेम्स आर हियर, वी हैव गुड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फ्रॉम
companies, all known names are almost there for pump storage. And they are doing surveys and बाकी उसमें कार्रवाई चल रही है. So we are very hopeful कि pump storage की capacity जब उत्तर प्रदेश में ये develop होती है, तो we will, Uttar Pradesh will also be a beneficiary to it, and Government of India and CA is working on कि उनको कैसे हम speed up करें, कैसे facilitate करें. And GOI भी उसमें hydro policy पे भी काम कर रही है. There is a working group of FOR also, which is working on this suggestions how to increase hydropower and pump storage power and इसको कैसे promote करें. तो ये चीजें ऑलरेडी उसमें हो रही हैं जिससे कि इस एनर्जी ट्रांजिशन को हम लोग बढ़ा सकें. अब जो चैलेंज एक और है वो ये है, ये जो डिमांड कर्व है इसको हम कैसे ठीक करें, डे टाइम हम कंजम्पशन को कैसे बढ़ाएं. तो डिमांड साइड मैनेजमेंट और उसके लिए जो टूल्स हैं उसके ऊपर भी सभी लोग ध्यान दे रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो राइट्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं उसमें भी और अदरवाइज भी ये टाइम ऑफ द डे टैरिफ को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टिपुलेशंस क्लियरली करी हैं. उत्तर प्रदेश में भी टाइम ऑफ द डे टैरिफ अभी पार्टली एनफोर्स्ड है, बट देयर इज अ स्कोप कि इसको हम कैसे बढ़ाएं जिससे कि ये जो डिमांड कर रहे हैं, जो पीक डिमांड हमारी रात में जाती है, उसको डे टाइम कंजम्पशन को कैसे हम प्रमोट करें, कैसे बढ़ाएं. तो दैट इज ए वेरी बिग चैलेंज फॉर अस एंड देयरफॉर वी आर वर्किंग ऑन इट कि इसको हम कैसे बढ़ा दें. अभी कल ही हम लोगों ने, मैं देख रहा था रिसोर्स एडिक्वेसी के ऊपर भी, क्योंकि पहले तो हम बिल्कुल एकदम नेक टू नेक चला करते थे. अब हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास प्लानिंग रिजर्व मार्जिन भी हो, पीक से ज़्यादा हमारे पास में पावर की अवेलेबिलिटी हो, हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग कैपेसिटी भी उससे ज़्यादा हो. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नोटिफाई किए हैं, सीए की गाइडलाइंस हैं, और स्टेट्स को भी अब उसके क्रम में रिसोर्स एडिक्वेसी की रेगुलेशंस बनानी है. तो कल ही हमने ड्राफ्ट रेगुलेशंस जो हैं उनको पब्लिश किया है फॉर स्टेक होल्डर कमेंट, and they are available on the UPRC website. So I'll expect कि उनको भी you will like to go through them and give us any suggestions जिससे कि रिसोर्स एडिक्वेसी के बारे में जो स्टेट लेवल पे रेगुलेशन करनी है उसको हम जल्दी से जल्दी ड्राफ्ट करके और फाइनलाइज करके नोटिफाई कर दें. We'll come up with other regulations also, and so there is a huge challenge for all of us, जो खास तौर से इस से जुड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, पब्लिक सेक्टर से हो, चाहे वो जनरेशन साइड में हो, ट्रांसमिशन में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो. तो आई एम वेरी होपफुल दैट दिस वर्कशॉप will be very useful for all of you who are participating, and if it is getting recorded, तो बाकी भी लोग अगर ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है, तो जो लोग नहीं भी आ पाए हैं उनको भी यहाँ के जो डेलीब्रेशंस हैं वो अगर ऑनलाइन माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से अवेलेबल होंगे तो बेहतर होगा, एंड इसमें वाइड स्प्रेड डिसर्मिनेशन हो पाएगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. And sorry for the confusion and thank you for the understanding, sir. And we understand कि बहुत short notice पे ये workshop organize किया गया, and that's why we are very grateful to all the participants with the short notice पे आए हैं to make this workshop a success. And thank you all. Now I would like to request the Arvind Kumar ji, Ashish Kumar Goyal ji, for his second. A very good morning to you all. Respected Dr. Kirit Parekh ji, Jyoti Parekh ji, Sri Arvind Kumar ji,